Welcome to Standard Academy. This is lecture number 5, class 9 mathematics. So today exercise is 1.5. The basic concepts of 1.5 are determinants of matrix, either the matrix is singular matrix or non-singular matrix. Second one is adjoint of a matrix, and third one is the inverse of a matrix by using adjoint method. So now I am going to start from matrix determinant. So what is determinants and how can we calculate the determinants of a given matrix? So let us discuss with example. This is very first example. Matrix A is given. A is equal to A, B, C, D. So how can we take the determinant? Putting the sign of determinant and removing the matrix sign. So this will become AD minus BC. So now, what is a singular matrix? The singular matrix is that type of matrix which have determinant's value equal to 0. So let us explain with example B. Example, let us a matrix B which have value 1, 3, 2, 6. So multiplying these two number, 1 multiplied by 6 minus 2 multiplied by 3, 6 1s are 6 and 2 3s are 6. So 6 minus 6 which is equal to 0. If the value of determinants is equal to 0, then it is called a singular matrix. Now non-singular matrix, a non-singular matrix is a type of matrix which have determinants value other than 0. For example, A 1, 2, 3, 8. So putting the sign of determinants on both sides, A determinant which is equal to determinant 1, 3, 2, 8. So multiplying these two diagonal elements, 1 multiplied by 8 and then multiplying, putting the formula sign which is minus and 2 multiplied by 3. So this is equal to 1 multiplied by 8, 8 minus 6 which is equal to 2. So the value of determinant is non-zero, so it is called a non-singular matrix. Now the second one concept is adjoint of a matrix. So how we can calculate the adjoint of matrix? Simply the entries of diagonals are changed by each other and other entries signs are changed. So let suppose A 1 minus 2 3 minus 6. So taking adjoint, so after the adjoint we have to change the diagonal entries, interchanging diagonal. Minus 6 will replace by 1 and 1 replaced by minus 6. So minus 6 is replacing by 1 and 1 is replacing by 6. So that's, and now replacing the sign of the other entries. So minus 2 will become plus 2 and 3 will become minus 3. Another example of adjoint, let's suppose another matrix B which is 6 1 by 2 3 0. So taking adjoint on both sides. So basic formula, interchanging the diagonals of values or entries. So here 0 is replaced by 6 and 6 is replaced by 0. So interchanging the entries position. So 0, 6 will be placed to each other and now changing the sign of other entries. So plus 1 by 2 is replaced by minus 1 by 2 and plus 3 is replaced by minus 1 by 3. So adjoint of B and adjoint of A can be calculated as. Now the third one concept is inverse of a matrix by using adjoint method. So let us suppose matrix A. So as we know, inverse of any matrix is equal to adjoint over A mod. So A mod, the condition here for A mod, which is
A mod should be non-singular matrix. Why? If we put a singular matrix, anything divided by 0, it will become infinity. So it should be a non-singular. So A mod is equal to 1, 3, 2, 8, multiplying these two, 1 multiplied by 8 minus 2 multiplied by 3, which is equal to 8 minus 6, and then A is equal to, which is equal to non-singular matrix. If A is a non-singular or any matrix which is non-singular, so the inverse of given matrix exists. Now we can calculate the adjoint of matrix for the required formula, because A inverse is adjoint over A mod. Now adjoint of A, which is equal to, by interchanging the diagonal entries and changing the sign of the other entries, so interchanging 1 and 8 and then changing the sign of these other entries. So after changing theirs, 8, 1, adjoint of A is equal to 8, 1 minus 2 minus 3. So now we have to calculate the inverse of A. So putting the values in formula, which is A inverse is equal to adjoint A or A mod. So this is A adjoint of A. So its value of adjoint of A is 8 minus 3 minus 2 minus 1. Our A mod is 2. So putting here A mod and then multiplying a value of mods with the given matrix adjoint. So now after multiplication and simplifying, we will get 4 minus 3 by 2 minus 1 and 1 by 2. Now we are going towards exercise. There are some important MCQs for the board exams before 1.1, 1.5. So the question can be asked, singular, what is singular matrix? So singular matrix is that type of matrix which have determinant equal to 0. So you have to put the right answer for the singular matrix where the matrix having the value of 0. Determinant value is equal to 0. For non-singular matrix, what is non-singular matrix? You have to put the right option where the matrix determinant is not equal to 0, and third one is any matrix is multiplied by its inverse or inverse is multiplied by its matrix, it will give us identity. So the fourth one is the identity matrix inverse is always equal to identity. And now the fifth one is EB whole inverse, which is equal to B inverse A inverse. So these all are the MCQs, important question for exercise 1.5. Exercise 1.5 और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मैट्रिसेस गिवन है और उन मैट्रिसेस का हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। जैसे हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है। सो ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो मैंने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लिया। दोनों साइड पे डिटरमिनेंट के साइन डालेंगे, मैट्रिक्स के साइन को हटा देंगे। सो डिटरमिनेंट के साइन डालने के बाद हमारे पास डिटरमिनेंट्स में डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस फार्मूले का आएगा, फिर इन दोनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया। तो हमारे पास a mod इज इक्वल टू 0 -2 which is equal to a mod is equal to 0 -2 नॉन जीरो डिजिट है, सो इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। सो इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को d mod गिवन है, d mod को हमने सिंपलीफाई करना है। d mod दोनों साइड पे mod ले लेंगे और मैट्रिक्स के साइन को एलिमिनेट किया तो डिटरमिनेंट के साइन पुट किए। सो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और फिर बाकी इंटीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साइन फार्मूले के आएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 3 4 12 होता है और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, तो 12 -2 हमारे पास इक्वल टू 10। ये भी नॉन जीरो आंसर है, तो नॉन जीरो ऐसे मैट्रिसेस जिनका नॉन जीरो आंसर हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस भी होती हैं। सो 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह बताना है कि मैट्रिसेस सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है।
तो हम पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है और नॉन सिंगुलर का अदर देन 0 होता है। सो एक मैट्रिक्स A है और उसकी वैल्यू है 3 6 4 2 4। सो इसका मॉड लेंगे, दोनों साइड पे मॉड लेने के बाद 3 और 4 को ऊपर क्या करेंगे, डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 माइनस 2 6 12 12 माइनस 12 0, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है। सो इट्स मीन ये सिंगुलर है। तो वो तमाम मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट 0 आएगा उनको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 c की वैल्यू गिवन है 7 -9 3 5। अब दोनों साइड पे मॉड लेंगे, मॉड लेने के बाद हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -9, तो 7 5 जा 35 माइनस और माइनस प्लस 3 9 जा 27, इनको ऐड करेंगे 62 आएगा। 62 अदर देन 0 है। सो इट्स मीन C इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी। इसमें अगर मैट्रिक्स हमें गिवन है 1/2 3/4 1 2, कहते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स D इनवर्स होता है और D इनवर्स का फार्मूला हमने सीख लिया है। कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसका इनवर्स निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे D है तो D इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ D डिवाइडेड बाय D मैट्रिक्स। अगर आपके पास A मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A मॉड हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको मॉड फाइंड करना है। मॉड फाइंड करने से हमें ये पता चलता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर मॉड नॉन जीरो है तो उन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर जिनका मॉड हमारे पास 0 है तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहले हमें मॉड फाइंड करना है। अगर मॉड या डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटरमिनेंट के साइन पुट करेंगे इस मैट्रिक्स पे। सो डिटरमिनेंट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। सो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिलेशन हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4 3/4 बनेगा। एलसीएम लेंगे 4 4 1 जा 4 4 3 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 3 1 1/4। सो हमारे पास A मॉड जो आ गया है या D मॉड जो आ गया है वो हमारे पास 1/4 है। सो 1/4 तो नॉन जीरो है, और अगर नॉन जीरो हो तो हम क्या कहते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और बिन फर्ज अगर ये मॉड 0 आ जाता तो फिर हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यही हम स्टॉप कर देते हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, D इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ D डिवाइडेड बाय D मॉड। D मॉड आ गया है, अब D इनवर्स निकालना है। सो D इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ D की भी जरूरत है। सो हम D की एडजॉइंट लेंगे। अगर D का एडजॉइंट लूंगा, एडजॉइंट ऑफ D इज इक्वल टू एडजॉइंट D की वैल्यूज आपके पास क्या है 1/2 3/4 1 2। अब एडजॉइंट क्या करते हैं, इन दोनों के प्लेसेस चेंज करते हैं 2 1/2 और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं -3/4 -1। सो हमारे पास ये वैल्यू एडजॉइंट की वैल्यू भी आ गई है और D मॉड की वैल्यू भी आ गई है। और अगर ये दोनों वैल्यू आ जाए तो एडजॉइंट सबसे पहले एडजॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे। एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास 2 -3/4 -1 1/2 है, वो मैंने पुट कर दी है। और D मॉड की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 है। सो अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे, अवर के नीचे अवर है तो 4 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। D से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो एडजॉइंट ऑफ D से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2। किसी भी कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से हमने सीखी ली है, तो ये हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 4 मल्टीप्लाई बाय -1 4 मल्टीप्लाई बाय दिस। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सो हमारे पास 4 2 जा 8 और ये 4 4 से कटिंग होगी -3 4 1 जा 4 -4 और 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा D इनवर्स का। सो D इनवर्स इज इक्वल टू 8 -3 -4 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, C की वैल्यू हमें गिवन है। C मैट्रिक्स इज इक्वल टू -2 6 3 -9। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है C का। कंडीशन ये है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट। सो हमने C इनवर्स फाइंड करना है और C इनवर्स का फार्मूला होता है
एडजॉइंट ऑफ C और C mod। सो सबसे पहले हमें C mod फाइंड करना है, बिकॉज ऑफ हमें चेक करना है कि mod एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो सबसे पहले मैं C mod फाइंड कर रहा हूं। C mod की वैल्यूज पुट करेंगे। सो आपके पास -2 6 3 -9 बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, -2 -9 -3 मल्टीप्लाई बाय 6। सो माइनस माइनस प्लस 2 9 दा 18 माइनस 3 6 दा 18 -18 प्लस 18 इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो इनवर्स does not exist of matrix C because its determinant is equal to 0। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? जब आप C इनवर्स ढूंढ करेंगे और आपके पास एडजॉइंट ऑफ C कोई भी वैल्यू होगी, अगर C एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है तो इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये है कि डायमेंशन जो होंगे वो उसके बहुत ज्यादा होंगे, इंफिनिटी होंगे। सो ऐसे हो नहीं सकता। सो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। और अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कीजिए। थैंक यू।